Hello students, this is Tamanna and we are studying first lesson gravitation. Most of the part of this lesson we have completed. इस lesson का ज़्यादातर part हमने complete कर लिया है. अब तक के जितने भी videos हैं वो completely English में upload किए हुए हैं. आप लोगों ने जैसा मुझे बताया है कि जो barrier आ रहा है language का वो solve करने की कोशिश करूँगी मैं आपसे. आप लोगों को अब तक के videos में अगर कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं. तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और इसमें हम देखने वाले हैं अर्थ्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं. एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वजह से बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहा जाता है. हमें पता है कि Earth attracts every object near it towards itself due to its gravitational force. Earth क्या करती है? अपने gravitational force की वजह से हर object को अपनी तरफ attract करती है और इसकी वजह से उसमें जो acceleration produce होगा gravitation की वजह से उसी को कहते हैं acceleration due to gravity. So this is the definition for the acceleration due to gravity. The acceleration produced in a body due to the gravitational force of the Earth is called the acceleration due to gravity. Okay, so this is the answer for your definition of acceleration due to gravity. You can write this in your exam. Now students, let's understand derivation of formula for acceleration due to gravity. अब हम देखने वाले हैं how to derive the formula of acceleration due to gravity. We can derive this formula by using Newton's universal law of gravitation. न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इस्तेमाल करके ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स इज इक्वल टू जी इंटू प्रोडक्ट ऑफ मासेस अपॉन आर स्क्वायर. यहाँ पे जो कैपिटल एम है, क्योंकि इससे पहले वाला जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने देखा था कि बोथ मास वर स्मॉल एम, राइट. सो बिकॉज देयर वर द मासेस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स. यहाँ पे जो कैपिटल एम है इट स्टैंड्स फॉर द मास ऑफ अर्थ. Okay, and the distance r is the distance between object and the center of the earth. So we can and now the acceleration due to gravity means g is equal to force upon mass. Remember, g is equal to force upon mass. So we can substitute this force into this formula and we can divide this m and ultimately we will get gm upon r square. So this is the formula for the acceleration due to ग्रेविटी. ये है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला. इट वॉज वेरी सिंपल. नाउ स्टूडेंट्स थिंक अबाउट इट. व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ग्रेविटी. अगर ग्रेविटी होती ही नहीं तो क्या होता? बहुत मुश्किल हो जाता है ना सब कुछ. सो देयर वुड बी नो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स. जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है वो यूनिवर्स के हर दो पार्टिकल्स के बीच में है, तो वो नहीं होता और जिसकी वजह से सोलर सिस्टम्स नहीं बनती, गैलेक्सीज नहीं बनती. ओके, ये सब तो ऑल द थिंग्स हेल्ड टू द अर्थ्स सरफेस बाय ग्रेविटी वुड फ्लोट अवे. जितनी भी चीज़ें ज़मीन पर खड़ी है वो सारी हवा में उड़ जाती, इंक्लूडिंग वाटर, एटमॉस्फेयर, एंड इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव. जिंदा रहना मुश्किल हो जाता. सो दिस इज़ द फुल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. And what would happen if the value of g, gravitational constant, was twice as large? The gravitational force would become double. Gravitational force double हो जाता. Also the value of acceleration due to gravity means g would become also double. एक चीज़ याद रखिए बच्चों, remember this thing, very important. Acceleration due to gravity depends on only two things. It does not depend on the properties of objects. It depends only upon two things: mass and the radius of earth. Mass और radius of earth. Okay, so जो acceleration due to gravity है वो earth के mass और radius पे depend है, ये याद रखिए. क्या होगा अगर what would happen if the value of g on the surface on the earth if its mass was twice, जो mass है वो डबल हो गया अर्थ का, and radius half of what it is now, जो radius है वो हाफ हो गया, तो क्या होगा? जो बच्चों इसके लिए हम ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है वो यूज़ करेंगे, g इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर. लेकिन उससे पहले जो कंडीशंस हमें दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करते हैं. क्या बताया गया है? सो द मास
मास क्या हो रहा है, डबल हो रहा है. सो 2m1, m1 मतलब एक्चुअल मास एंड m2 इज अ न्यू मास. अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 2m1 इज इक्वल टू m2. तो m1 अपॉन m2 क्या हो जाएगा, 1/2. ओके, नाउ r1 इज इक्वल टू 2r2, क्योंकि रेडियस हाफ हो, जो रेडियस है वो हाफ है. ओके, सो r1 इज इक्वल टू 2r2. सो स्टूडेंट्स r1 अपॉन r2 क्या होगा, 2/1. ओके, नाउ लेट्स यूज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशन. फर्स्ट हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फॉर द एक्चुअल वैल्यूज निकालेंगे. g1 इज इक्वल टू gm1 अपॉन r1 स्क्वायर, और दूसरा जो न्यू वैल्यूज है उसके लिए g2 इज इक्वल टू gm2 अपॉन r2 स्क्वायर. अब इन्हें हम कुछ इस तरह से कंपेयर करेंगे बच्चों. उसके बाद ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये सेम है. उसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे. ये डिवाइड है, यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा, लेकिन कुछ इस तरह से. ध्यान से देखिए. अब m1 अपॉन m2 कितना है, 1/2. r1 अपॉन r2 2/1 है, तो r2 अपॉन r1 क्या होगा, 1/2 एंड स्क्वायर. सो 1/2 इंटू, अभी स्क्वायर लेंगे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1 इंटू 1 1 एंड 2 इंटू 4 8. सो g1 अपॉन g2 विल बी 1/8. तो g2 की वैल्यू हो जाएगी, मतलब जो न्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो एक्चुअल ग्रेविटी के 8 टाइम्स हो जाएगा. मतलब मास अगर डबल हो गया और रेडियस हाफ हो गया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 8 टाइम्स होगा. ओके, सो thus the value of g on the surface of the earth would be 8 times of the present value of the acceleration due to gravity. Now students, this acceleration due to gravity is not same everywhere. ये हर जगह सेम नहीं है. There are some factors affecting the value of g. कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो इस वैल्यू को अफेक्ट करते हैं. The value of the acceleration due to gravity, means value of g, changes from place to place on the earth. ये change होती है. Okay, it also varies with altitudes and depth below the earth surface. हाइट के साथ, जैसे जैसे हम हाइट पे, अर्थ के ऊपर, सरफेस के ऊपर हम जैसे हाइट पे जाएंगे तब भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ जी है, वो चेंज होगी. और डेप्थ में जाएंगे, इनसाइड द अर्थ जाएंगे तब भी चेंज होगी. अब इन्हें एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले है चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ के सरफेस की वजह से कैसे चेंज होती है ये वैल्यू. सबसे पहले समझ लीजिए कि द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट एग्जैक्टली स्फेरिकल. ओके, ये स्फेरिकल नहीं है एग्जैक्टली. क्या है, सो द अर्थ बल्जेस एट द इक्वेटर. इक्वेटर के ऊपर ये थोड़ी सी उभरी हुई है और पोल्स पे फ्लैटर है. इक्वेटर पे जहाँ पे ये उभरी हुई है वहाँ पर रेडियस लार्जेस्ट है, और पोल्स पे जहाँ पर ये फ्लैट है वहाँ रेडियस क्या है, स्मॉलेस्ट है. ओके, सो दस द वैल्यू ऑफ जी इज हाईएस्ट एट द पोल्स. जहाँ पर फ्लैटर है, जहाँ पर रेडियस कम है, वहाँ पर वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा है. मीन्स रेडियस कम होगा तो वैल्यू ऑफ जी ज़्यादा होगी. और कितनी है ये 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. और एंड इट डिक्रीजेस स्लोली विद डिक्रीजिंग लैटिट्यूड. और जैसे जैसे ये लैटिट्यूड कम होता है ये भी कम होती जाती है. इट इज़ लोवेस्ट एट द इक्वेटर. इक्वेटर पे जहाँ पे रेडियस ज़्यादा है यहाँ ये वैल्यू लोवेस्ट है, जो है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो इन दिस वे दिस वैल्यू चेंजेस अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द अर्थ. नाउ हाउ डज इट चेंज विथ हाइट. हाइट के साथ कैसे चेंज होती है. एज वी गो अबाउट द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ आर. ओके, वैल्यू ऑफ आर, सो डिस्टेंस. व्हाट इज वैल्यू ऑफ आर? द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द सेंटर ऑफ द अर्थ. सो वैल्यू ऑफ आर इंक्रीजेस. जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस के ऊपर जाते हैं ये जो डिस्टेंस है आर, वैल्यू ऑफ आर है वो इंक्रीज हो जाती है. और क्या बताया था मैंने, अगर वैल्यू ऑफ आर इंक्रीज हो जाता है तो फिर वैल्यू ऑफ जी क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगा. ओके, सो ये एक्सेलरेशन कम हो जाएगा. लेकिन
फॉर हाइट्स विच आर स्मॉल इन कंपैरिजन टू द अर्थ्स रेडियस, अर्थ का जो रेडियस है इसके कंपैरिजन में जो छोटे हाइट्स है, कम हाइट्स है, वहाँ पर ये जो चेंज होगा चेंज, बट ये चेंज बहुत ही निग्लिजिबल होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ हाइट 10 किलोमीटर अबव द अर्थ्स सरफेस, 10 किलोमीटर ऊपर से एक एरोप्लेन जा रहा है और अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर. रिमेंबर दिस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ? 6400 किलोमीटर. एंड डिस्टेंस ऑफ द एरोप्लेन फ्रॉम द surface of the earth is 10 kilometer. So what would be the distance of aeroplane from the center of earth? It will be 6410 kilometer. ये 6410 इतना ही होगा. This is very minor change. So therefore the value of g due to its, the change in the value of g due to its is negligible. बहुत ही negligible change होगा. But when we consider an artificial satellite orbiting the earth, artificial satellites जो बहुत ज़्यादा हाइट पर है, उन्हें अगर कंसिडर करेंगे, then we have to take into account the change in the value of g due to the large change in the distance of the satellite from the center of the earth. ये जो हाइट है वो बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है उसमें जो चेंज होगा वो कंसीडरेबल होगा. सो दिस इज द टेबल, आई हैव टेकन इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. You can see here surface at the surface of the earth, which is at the height 0 kilometer. Acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. Okay, it's 9.8. Students, remember, at the surface of the earth where the height is 0, 9.8 is the acceleration due to gravity, and this is the highest value of the acceleration due to gravity. So the acceleration due to gravity is highest at the surface of the earth, on the surface of the earth. Now let's see how does it change with depth. The value of g also changes if we go inside the earth. The distance of the object from the center of earth, that means value of r decreases. सिंपल है, जैसे ही ऑब्जेक्ट इनसाइड द अर्थ जाएगा, जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से, वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. तो हमने क्या सीखा है? व्हेन द वैल्यू ऑफ आर मीन्स द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ डिक्रीजेस, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेस. सो यू मस्ट बी थिंकिंग कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे, इनसाइड द अर्थ जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होगी? इंक्रीज होगी. ये सोच रहे होंगे, लेकिन हमने ये भी तो देखा है कि एट द सरफेस ऑफ द अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम. तो उससे अंदर जाते वक्त तो मैक्सिमम बोला हुआ तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा वो, राइट? सो एक्चुअली क्या होता है? द पार्ट ऑफ द अर्थ विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द ग्रेविटेशनल फोर्स felt by the object also decreases, which means the value of mass also decreases. जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अंदर जाता है, अर्थ के जो मास है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स को कंट्रीब्यूट करता है, वो भी कम हो जाता है. तो इट मीन्स the value of mass and value of r both changes. So due to the combined result of change in r and m, the value of g decreases as we go deep inside the earth. मतलब जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाएंगे, इनसाइड द डेप्थ में जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ जी क्या होने वाला है? कम होने वाला है बच्चों. So students, this was the concept of acceleration due to gravity. In the next video we'll see some another important concepts of this lesson, और साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स